हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KS Chem क्लास एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर कीर्ति शर्मा. So we were doing class 10 chapter 1 of science chemical reaction and equation. So अभी तक हम कर चुके थे what is the difference between physical change, chemical change, what is chemical reaction क्या होती है and how to balance a chemical reaction. So now we have to start with our next topic, which is what are the different types of chemical reactions. So here we go. Types of chemical reactions. Although I have shown here what are the different types of chemical reaction, exothermic, endothermic. These two reactions are based upon heat, combination, decomposition, displacement and double displacement. And then we have oxidation and reduction. The reaction in which oxidation reaction दोनों होता है, it is known as redox. So these three are similar. So we will start with combination reaction. So a combination reaction, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, combination मतलब कि there is a combining of. So a reaction in which a single product एक बनेगा, लेकिन वो किससे बनेगा? From two or more reactants is known as a combination reaction. For example, we have A plus B, it would give only a single product which is a C. So आपके पास रिएक्टेंट तो दो हैं बट प्रोडक्ट एक बनेगा. अब ये जो रिएक्टेंट हैं, दीज रिएक्टेंट कुड बी बोथ, चाहे तो दोनों एलिमेंट हो सकते हैं या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं या एक एलिमेंट या एक कंपाउंड हो सकता है. ठीक है. नाउ आई होप यू नो दैट एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है. मैं फिर भी बता देती हूँ. एलिमेंट जो जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम होता है. फॉर एग्जाम्पल H2, इट इज ओनली अ एलिमेंट बिकॉज यहाँ पे दो हाइड्रोजन है बट दोनों ही हाइड्रोजन है. बट अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल H2O, तो यहाँ पे दो तरीके के एटम यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड. ओके, सो रिएक्टेंट दोनों ही एलिमेंट हो सकते हैं या दोनों ही कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड. बट द मेन थिंग इज प्रोडक्ट हमारा सिर्फ एक बनेगा फ्रॉम टू रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर. वाटर का फॉर्मूला अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है H2O होता है. सो H2O बनाने के लिए व्हाट डू वी नीड? H2 प्लस O2. ठीक है. क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंसिंग हम कर चुके हैं. यस, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. सो हमें इसे बैलेंस करना होगा. सो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? हियर वी आल्सो वी हैव टू ऐड 2H2O और यहाँ पे भी हमें 2H2O करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल. कोल एक्चुअल में क्या होता है? कोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ओनली कार्बन. ठीक है. इट इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ओनली कार्बन. So carbon, and it is present in the solid form. So burning के लिए which gas is important? Oxygen. So C plus O2 which gives us CO2. So you can see here हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है. ओके, सो इन दोनों रिएक्शंस में हमने दोनों ही रिएक्टेंट हमारे एलिमेंट थे. आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल in which we have one compound and one element. For example, calcium, or they both are a compound. Calcium oxide plus H2O gives calcium hydroxide. Okay, calcium oxide and water gives calcium hydroxide. So this is the aqueous form, this is the solid form, and this is the liquid form. Okay, so in which we both are the reactant are compound और product भी हमारा compound form में है. ठीक है. So this is an example of combination reaction. Our next reaction is decomposition reaction. Decompose, जो decompose word का मतलब होता है ना, इसका मतलब ही होता है टूटना, break down. So decomposition reaction are those reactions in which a substance
और सब्सटेंस यहाँ पे सिर्फ एक होगा, मतलब यू आर हैविंग ओनली अ सिंगल रिएक्टेंट. दैट सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोजिंग or breaking down into two or more than two simpler substances. Okay, so for example we have only a single compound or single reactant A, and A is breaking down into two or more than two simpler substances. So this type of reaction जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, that is known as decomposition reaction. अब decomposition reaction भी तीन तरह की होती है, three types. And what are these three types? The first one is thermal decomposition. The second one is electrolytic decomposition. And the last one is photolytic decomposition. All the three reactions are about decomposition, but the first one, A, thermal is related to heat, electrolytic is related to electricity, and photolytic is related to light, some sort of light energy. Okay, so we will study these three types of decomposition reaction one by one. So we will start with thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction, decomposition by the application of heat. ठीक है, होगा इसमें भी सेम वही, एक सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, बट यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. I have shown you some pictures like how the decomposition of ferrous sulfate occurs और उसमें क्या क्या कलर चेंजेस होते हैं. ठीक है, सो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट. अब ये जो फेरस सल्फेट ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में क्या होता है, FeSO4.7H2O होता है. FeSO4.7H2O means it is ferrous sulfate heptahydrate. Okay, it is a form of heptahydrate. Hepta means 7 और hydrate means H2O, molecule of water. So due to this H2O, जो ये पानी प्रेजेंट होता है FeSO4 में, इसकी वजह से FeSO4 का कलर कैसा है, सो इसका कलर होता है लाइट ग्रीन. हमें कुछ कुछ कंपाउंड्स के ना कलर भी याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज एग्जाम में कई बार कलर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें ध्यान रखनी है. अब जैसे जैसे हम हीट अप्लाई करते हैं ना, तो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं. अब हीट के लिए ना हमारे पास कई बार क्या होता है, हम हीट को एरो के ऊपर लिख देते हैं या फिर ऐसे एक ट्राइंगल का सिंबल बना देते हैं. ये जो ट्राइंगल का सिंबल होता है, ट्राइंगल का सिंबल का मतलब क्या होता है, हम हीट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो हम बर्नर पे ये टेस्ट ट्यूब रखते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो हीट अप्लाई करने से धीरे धीरे इसका जो ग्रीन कलर है ना वो डिसअपियर होने लगता है. सो आप देख रहे हो यहाँ पे ये धीरे धीरे ग्रीन कलर डिसअपियर होते होते क्या बन जाता है, ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमने हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई करने से ये जो FeSO4 के साथ जो 7H2O जुड़ा हुआ था वो हट जाता है. ठीक है, 7H2O. सो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, जिसमें पानी नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है. सो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. ठीक है, बट जब हम फर्दर इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, सो फर्दर हीट करते में जो FeSO4 धीरे धीरे किस में चेंज होता है, ब्राउन कलर के कंपाउंड में चेंज जाता है. और इस ब्राउन कलर के कंपाउंड को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड. दिस इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ Fe2O3. ये सॉलिड फॉर्म में होता है, साथ में हमारे पास गैसेस भी रिलीज होती हैं. ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनते हैं आउट ऑफ दिस FeSO4. ठीक है,
ये जो 7H2O भाप बन के एज अ स्टीम बन के ये वेपराइज हो जाता है, टेस्ट ट्यूब से बाहर चला जाता है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड बचता है वो सिर्फ FeSO4 बचता है। सो FeSO4 हमें क्या देता है, Fe2O3। इट इज़ नोन एज फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का कलर आपको दिख रहा है, ये किस कलर का है, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और हमारे पास दो गैसेस बचती हैं, SO2 एंड SO3। SO2 SO3 गैसेस को हम बोलते हैं, SO2 इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 इज नोन एज सल्फर ट्राईऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्सीजन, SO3 में तीन ऑक्सीजन है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके, तो अगर आपने एनसीईआरटी में वो पिक्चर देखी हो जिसमें एक लड़की ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्ड करके खड़ी होती है और उसमें दिखाया होता है कि शी इज स्मेलिंग समथिंग, सो उस टेस्ट ट्यूब में से मतलब जब हम FeSO4 को हीट करते हैं, सो हमारे पास जो स्मेल करने से जो गैस आती है वो SO2 SO3 गैसेस की स्मेल होती है, जो कि कैसी स्मेल होती है, बर्निंग सल्फर स्मेल होती है, ठीक है। जैसे बर्निंग सल्फर की एक अलग यूनिक स्मेल होती है, इरिटेटिंग सी स्मेल होती है थोड़ी सी। सो उस स्मेल से हमें पता चल जाता है कि सॉलिड के साथ साथ कुछ गैसेस भी इवेपोरेट हुई हैं FeSO4 कंपाउंड में से। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस, बिकॉज इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में FeSO4 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो वो आपको ये बोल देगा name the compound A having a light green color, on heating it changes its color to brown, so write the reaction and identify the type of reaction, ठीक है। so you have to be very careful, आपको ये सारी reactions याद रखनी है along with the color change। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रही हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट का सिंबल होता कैसा है, लेड नाइट्रेट हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये सॉलिड है, आपको दिख रहा है ये PbNO3 है, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट आपको दिख रहा है किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का है। फिर जैसे हम इसे हीट कर रहे हैं तो देखो, वी आर अप्लाइंग हीट, हम टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट थोड़ा सा फिल किया, वी आर हीटिंग इट। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो कलर है, कोई ऐसी गैस निकल रही है जो कि किस कलर की हो रही है, धीरे 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 रेडिश ब्राउन कलर का कोई वेपर निकल रहा है, ठीक है। सो जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, सो इट कन्वर्टेड टू लेड ऑक्साइड which remains as solid, plus NO2 गैस निकलती है हमारी एंड ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। सो NO2 गैस, ये जो NO2 गैस होती है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी का ही कलर होता है ब्राउन कलर का। तो यही होती है हमारी ब्राउन कलर की फ्यूम्स, फ्यूम्स होता है धुएं। सो ब्राउन कलर के जो धुएं निकल रहे होते हैं वो किस वजह से निकल रहे होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 गैस, एंड ऑक्सीजन गैस भी बनती है साथ में। अब ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है, इस ऑक्सीजन गैस में हमें क्या शो कर रहे हैं, हमने एक जलती हुई कोई तीली है या फिर कोई भी एक स्टिक है, उसको जलाया, फिर हमने बुझा दिया, फिर जब जैसे हमने बुझा उसको फिर से हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, उसको अंदर डालते ही देखो यहाँ पे फिर से उसमें आग जल गई, ठीक है। और कभी भी किसी भी चीज़ में बर्निंग कब होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हमें पता चलता है कि NO2 गैस के साथ साथ कौन सी और गैस निकली है, ऑक्सीजन गैस निकली है, राइट। और उसके पीछे एक सॉलिड कंपाउंड बच जाता है, टेस्ट ट्यूब में अभी भी नीचे सॉलिड कंपाउंड बच जाता है विच इज़ लाइट येलो इन कलर, जिसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। तो ये जो सॉलिड बच गया है इट इज़ लेड ऑक्साइड, ये येलोइश इन कलर होता है, ठीक है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट में क्या क्या हुआ हमारा, लेड नाइट्रेट सॉलिड से जो कि वाइट कलर का था, जैसे ही हम उसे हीट करते हैं वो लेड ऑक्साइड में चेंज होता है जो कि येलोइश कलर का होता है, साथ में एक ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है विच इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड
ऑक्सीजन गैस निकलती है। सो दिस इज दी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक्टिविटीज़ के थ्रू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो ये सब आप बिल्कुल ध्यान रखें। Next, we move on to the next type of decomposition reaction, which is electrolytic decomposition reaction. जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बाय पासिंग करंट। सो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर कोई एक कंपाउंड एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज़ द एग्जाम्पल वाटर का टूटना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो ये डायग्राम आपका बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक में, इन विच हमने क्या किया, दो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स, ये जो ग्रेफाइट रॉड है ना, इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स एक तरीके की वो रॉड होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सो जो इलेक्ट्रोड एनोड है, एनोड पे एक साइन होता है विच इज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड यहाँ पर हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, वी हैव अ स्विच टू ऑन एंड ऑफ, एंड फिर हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा करके ढक दिया, मतलब हमने इलेक्ट्रोड्स को कवर कर दिया। ठीक है, और इस मग को हमने किससे फिल कर दिया है, वाटर से फिल कर दिया। राइट, अभी जो वाटर से हमने फिल किया है, वाटर के साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें अ वेरी 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड की डालते हैं। ठीक है, एसिड आप कुछ भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, कोई भी एक एसिड 2-3 ड्रॉप्स बस हम डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्योर वाटर है, वाटर इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम एसिड डालते हैं ताकि उसमें, एसिड क्या करता है, एसिड की वजह से आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। आयंस प्रोड्यूस हो, जैसे HCl यूज़ किया तो हमने H+ आयंस एंड Cl आयंस प्रोड्यूस हो गए, जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन में। ठीक है, एंड इसी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की वजह से फिर पानी ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, पानी ब्रेक डाउन हो रहा है, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन में, ब्रेकिंग डाउन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर फॉर्म कैसे हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मदद से। सो वैसे ही जब वाटर टूटेगा तो किस में टूटेगा, किस में टूटेगा, H2O लिक्विड विल ब्रेक डाउन इन H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। राइट, सो एरो पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव अ रिएक्शन कंडीशन है, व्हाट इज इट, इलेक्ट्रिसिटी। सो एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो H2O टूट जाता है H2 गैस एंड O2 गैस में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे निकलती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनोड पे जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। और कैथोड पे जो कि नेगेटिव है, उस पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो कैथोड विच इज अ negative electrode having hydrogen gas. Okay, अब बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ऊपर स्पेस है ना, ये स्पेस क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे गैस आके कलेक्ट हो गई है, वाटर नीचे है, हवा ऊपर है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन है और इस वाली में हाइड्रोजन है। सो आपको जो गैप है वो किस में ज़्यादा दिख रहा है, मतलब जिसमें ज़्यादा गैप होगा इसका मतलब ज़्यादा गैस फॉर्म हो रही है। राइट, सो हाइड्रोजन की यहाँ पे गैस ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की कम है, ऐसा क्यों। सो इफ़ यू लुक प्रॉपरली ऑन द रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी है, H2O गिव्स H2O2, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, ये बैलेंस नहीं है। सो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2H2O, और H2 के आगे भी मुझे क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। राइट, तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर
ये जो इनके कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है 2 एंड ऑक्सीजन का कोफिशिएंट आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब इट मस्ट बी 1। तो इन दोनों के जो मोल्स बने हैं, मतलब इनके जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट जो है वो 2:1 रेशियो में है। मतलब हाइड्रोजन गैस कितनी है ऑक्सीजन के मुकाबले? डबल है। सो हाइड्रोजन गैस डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो इसीलिए यहाँ पे जो गैप है ना वो ऑक्सीजन से लगभग डबल गैप है। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी ये दो मेजर क्वेश्चन बनते हैं कि विच आर द डिफरेंट गैसेस रिलीजिंग ऑन एनोड एंड कैथोड एंड वाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द ऑक्सीजन। तो आपको वो विद अ बैलेंस्ड इक्वेशन आपको वो एक्सप्लेन करनी होगी। ओके सो ये हमने सेकेंड पार्ट भी ख़त्म कर लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी मूव टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ फोटोलिटिक का मतलब क्या है? फोटो यहाँ पे वो फोटो पिक्चर वाली फोटो नहीं है, फोटो का मतलब लाइट। ओके अब लाइट एनर्जी, मतलब यहाँ पे भी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब लाइट जो एनर्जी है वो कहीं से भी आ सकती है। इट कुड बी अ सन लाइट, और ऐसी लाइट जो हमें शायद विजिबल हो, या फिर कोई ऐसी हाई एनर्जी लाइट जो हमें विजिबल ना हो, जो हमें ना भी दिखे। ठीक है। तो लाइट एनर्जी, सो लाइट की हेल्प से, सो एक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलिसिस। इसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। ये जो लिसिस का वर्ड लिसिस होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। ठीक है। सो लिसिस इज ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन। फोटोलिसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो हम यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं किसका? किसी भी एक कंपाउंड का विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड हैज अ सिंबल ऑफ AgCl विच इज सॉलिड। देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखाई है, दिस इज द कलर ऑफ AgCl। AgCl किस कलर का दिख रहा है यहाँ पे हमें? वाइट कलर का। तो ये AgCl वाइट कलर का कंपाउंड होता है, वाइट कलर का कंपाउंड होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें सनलाइट देते हैं तो सनलाइट की वजह से ये जो एक चाइना डिश होती है, एक चीनी जिसे जिस उसके कप बने होते हैं, हमारे जो टी कप्स होते हैं, उसी ही मटेरियल का एक डिश होता है, एक कटोरी टाइप से, जिसे हम चाइना डिश बोलते हैं। उसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ था जो कि वाइट कलर का था, लेकिन धूप की वजह से वो किस कलर का बन गया? उसके ऊपर कैसी कोटिंग आ गई? देखो, ग्रे कोटिंग आ गई। सो ग्रे कोटिंग किसकी वजह से? क्योंकि AgCl टूट गया किस में? Ag सॉलिड में प्लस Cl2 गैस में। ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 एंड Cl2, तो जो Ag सिल्वर बनता है ये ग्रेइश कलर का कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से वाइट कलर AgCl का किस में चेंज हो जाता है? ग्रे कलर में। सो देयर इज अ चेंज इन कलर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, so silver bromide has a formula of AgBr। AgBr भी सॉलिड होता है, उसका भी अगर ब्रेक डाउन करें तो एरो के ऊपर सनलाइट लिखना नहीं भूलना है हमें। कई बार ना सनलाइट की जगह पर ऐसे लिखा होता है H न्यू, जो टेढ़ा V बना होता है इसे न्यू बोलते हैं। ये भी क्या होता है एक्चुअल में? ये सनलाइट एनर्जी होती है। आप इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ेंगे इफ़ यू चूज़ PCM और PCB। सो लाइट एनर्जी हम ले रहे हैं, तो लाइट एनर्जी की वजह से क्या होता है? ये किस में चेंज हो जाता है? सिल्वर में एंड ब्रोमीन गैस में। सो अगेन ये भी कलर हमारा फ्रॉम color change would be there. Okay, why I am telling about this AgCl and AgBr? ये जो compound होते हैं ना, these compound used in black and white photography. So इसीलिए इनका यूसेज भी इम्पॉर्टेंट है।
तो कई बार क्वेश्चन अगर रिएक्शन नहीं पूछता तो पूछ लेता है नेम अ कंपाउंड विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. सो फोटोग्राफी मीन्स अगेन विद द हेल्प ऑफ सम लाइट. सो वहाँ पर कौन अपना कलर चेंज करता है? AgCl, AgBr, देयर आर सम कंपाउंड्स. ओके, सो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है. अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं what is the relation or what is the difference between a combination and decomposition reaction? Could you tell? सो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं ये ऑपोजिट होती हैं किसके? कॉम्बिनेशन. बिकॉज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा होता है, दो चीज़ें जुड़ रही होती हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में एक ही चीज़ दो में टूट रही होती है. ठीक है. सो कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर बोथ सेपरेट और वी कैन से ऑपोजिट टू ईच अदर. सो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अबाउट दिस. बट बिफोर एंडिंग द क्लास आई डू हैव सम क्वेश्चन. लेट वी सॉल्व दैट क्वेश्चन टू. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. अब देखो आपको रिएक्शन दी है, रिएक्शन के लिए आपको इट इज़ अ वर्ड इक्वेशन, आपको बैलेंस्ड भी करना है और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन भी करना है. सो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक कार्बोनेट हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ ZnCO3 which is a solid. It gives zinc oxide solid plus CO2 gaseous. ओके, सो ये हमने केमिकल इक्वेशन. अभी स्केलेटल इक्वेशन लिखे, क्या ये बैलेंस्ड है? चेक करो. जिंक ऑन द बोथ द साइड 1 1 है, कार्बन भी 1 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, एक ये रहा और दो ये रहे. सो मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है. तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई. सो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई हमारी. अब आपको आइडेंटिफाई द टाइप भी करना है. तो ये किस टाइप की इक्वेशन आपको दिख रही है? मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन को हमें ऐसे ध्यान रखना है, ABC देगा लेकिन डिकम्पोजिशन क्या देगा? A to BC. ठीक है, B plus C. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू हैव ओनली वन रिएक्टेंट और वन रिएक्टेंट किस में टूट रहा है? टू प्रोडक्ट्स में टूट रहा है. सो इट इज अ टाइप ऑफ decomposition reaction. Exactly, so it is a type of decomposition reaction. Now अगर मान लेते इस एरो के ऊपर मैं ऐसे हीट का सिंबल लगा दूं, सो व्हाट डज इट मीन? तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई? अगर मुझे टाइप में भी फर्दर बताना है तो इट वुड बिकम an example of thermal decomposition reaction. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. अगेन हमें स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है. हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस, ये हमें क्या दे रहा है? दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. गैसेस लिखा है तो वी विल पुट द सेम स्टेट सिंबल. नाउ वी हैव टू चेक क्या ये बैलेंस है. सो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड दो है, क्लोरीन भी दो है, बट राइट हैंड साइड सिर्फ एक एक है. सो व्हाट वी विल डू? 2HCl. अब ये बैलेंस हो गई है. ठीक है, यू हैव टू टेल आइडेंटिफाई लाइक कौन सी रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन अभी हमने दो ही पढ़ी है तो मैंने उसी के एग्जाम्पल लिए. ठीक है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके आपस में क्या दे रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, कोई एक्टिविटी आपको दे देंगे, कोई पिक्चर आपको दे देंगे एंड फिर पूछेंगे कि एक्सप्लेन द पिक्चर, या इसकी कोई दो ऑब्जर्वेशन लिखो या ऐसे कोई दो रिजल्ट लिखो. ठीक है, सो देन यू हैव टू एक्सप्लेन. सो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ subscribe the channel and like and share my video. Okay, thank you.